Welcome to this session. Today we will be discussing about the geography. In chapter 1, we would be discussing about the looking at the earth. So how would we look at the earth? The one way which geographers choose to look at the earth is the maps. The other ways are globe and roaming around it. So we will talk about the map and the mapping processes and the part or elements of the map which we use. So first thing which we will discuss today is what is map. So map are a visual representation of a portion of earth. माने कि when we have to look at a specific part of the earth or at a specific portion of the earth, how will we know about it? Or for more example, we can take look, we go to school. So you go to school from your home, you learn the routes, you learn the areas which you cross. So what you do in your subconscious mind is that you build a map. यानी कि जब हम घर से स्कूल जा रहे होते हैं तो हम सभी रास्ते की चीज़ों को जब याद करते जाते हैं तो वो एक तरीके का मैप अपने दिमाग में बना रहे होते हैं. तो ये एक बहुत छोटा एग्जांपल. इसी प्रकार हम स्टेट की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट की बात करें, फिर कंट्री की बात करें, तो वो मैपिंग कहलाता है, प्रोसेस मैपिंग कहलाता है. और जो बनता है उसे हम मैप के नाम से जानते हैं. ये एक तरीके का विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि काल्पनिक रिप्रेजेंटेशन होता है. यहाँ एग्जाम्पल के लिए हमने इंडिया का मैप ले रखा है. तो ये मैप क्या दर्शाता है कि इस पोर्शन से लेकर के इस पोर्शन तक और इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन तक एक लैंडस्केप है जिसे कि हम इंडिया के नाम से जानते हैं. इस लैंडस्केप का शेप कुछ इस तरीके का है और इसके पास फिर वाटर बॉडीज हैं. ऊपर में यहाँ पर हिमालयाज है, यानी कि कुछ पहाड़ हैं, और बीच में और भी प्लेट्यूज हैं. डेक्कन प्लेट्यू हो गया, ये प्लेन हो गया. ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैप. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ मैप्स. Generally, there are three types of maps: general reference map, thematic map, and topographic maps. So look, when we have to discuss about the features of the earth, that could be the natural features or that could be the man-made features. So what are the features? The natural features are mountains, plateaus, plains, oceans, rivers. So when we have to know about these things, or what are the man-made references? Man-made features are the land boundary divided into states. So when we will have to, or when we need to know about these features, the human made features or the natural features like mountains, rivers and other things, we take the general reference map. It also describes the boundary lines of countries or the states, like here lies the Gujarat and here lies Rajasthan. So when we have to distinct between the Rajasthan and Gujarat state, what will we use? Here there is no boundary drawn. So how will we know that till this place is the Gujarat and from there Rajasthan starts? So that boundary line is described in the general reference maps. Now we come to the second type of map, that is thematic map. So thematic map tells us about the specific kind of information such as climate, population and density. So we have, for example, map of India. Now what will we do if we have to get the climate or the weather report that we get on the website of Indian government too. So the climate changes are drawn with the use of colors and symbols. Like you would have seen seen in your phone that when there is chances of rain, the clouds are shown with without the sun. When there is a sunny day, the sun is shown on the phone. So these are type of representation which we use in thematic map. Apart from the weather and climate, we tell about the population and density. Population माने the number of people which will live in the country. So population of India is less than the population of China, which is our neighbor. So using the population map, we can know about the population of different countries and population of our own different states. Now come the term density. What is density? So the population in particular area is known as density. माने if there is less area and living more people, that will be higher density. When there is more area and living less people, that will be the lower density. So Uttar Pradesh, which lies here on the map, has
the highest density, one of the highest density. Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, a lot of people live here. There is high population and low area compared to the population. The one higher density is Delhi. Here lies Delhi. So Delhi is a state, Delhi is a union territory, sorry, as well as the capital of India. A large number of people live there for their jobs and higher studies and every other thing. So the area of Delhi is so small and the population is so large. Whereas here lies the Arunachal Pradesh. This boundary is of Arunachal Pradesh. In Arunachal Pradesh, the landscape is very big. There is a lot of land compared to Delhi. When we will compare the landscape, that's so much big than Delhi. But when we will compare the population of Arunachal Pradesh is very low. So the population density of Delhi is very much higher than the population density of Arunachal Pradesh. यानी कि जब कम जगह में अधिक लोग रहते हैं तो वहाँ पर डेंसिटी हायर माना जाता है, और जब जगह बहुत ज़्यादा हो और कम लोग रहेंगे तो वहाँ पर हम डेंसिटी कम कहेंगे. उदाहरण के लिए हम लोग छोटा सा एक कमरा भी ले लेते हैं. एक कमरा है 10 बाई 10 का और उसमें 50 लोग खड़े हैं तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, बहुत भीड़ हो जाएगी. वहीं उस कमरे में अगर केवल 4 लोग रहेंगे या वो 50 लोग एक बड़े कमरे में चले जाएं तो वहाँ डेंसिटी कम हो जाएगी. So now we will move to the next topic, which is the importance of maps. Why we use maps? Okay, sorry. The one more map is topographic map or the navigation map. So the third one is the navigation map. Navigation maps are used by the sailors in the sea or the pilots in the sky flying the aeroplanes. So using the navigation map, they decide in which direction they have to go to reach a particular country or a particular space. Now there is the importance of maps. What are the importances? So first one is map shows accurate location of different physical features, ocean, seas, places, countries, cities, state, etc. तो मैप की मदद से हम लोग स्पेसिफिक लोकेशन पता करते हैं. उदाहरण के लिए, एग्जांपल के लिए अगर हम ले लें तो यहाँ तक लैंडस्केप है और इसके बाद ओशन आता है, ठीक है. फिर ओशन के बाद श्रीलंका आता है. तो ये क्या हो गया, ये हमारा स्पेसिफिक चीजें बता रहा है. तो जब जो मैप है वो हमें बहुत ही एक्यूरेट लोकेशन बताता है कि कौन सी चीज कहाँ लाइक करती है. एग्जाम्पल के लिए यहाँ ओशन है, यहाँ माउंटेन है, यहाँ एक दूसरी कंट्री है पाकिस्तान, यहाँ बांग्लादेश है. तो ये सारी चीजें हमें कौन बताएगा, मैप बताएगा. सेकेंड पॉइंट इज मैप इंडिकेट्स द फिजिकल फीचर ऑफ लैंड, क्लाइमेटिक कंडीशन, वेदर पैटर्न, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ. Of the reason they also provide information on distribution of natural resources. मतलब क्या क्या चीजें बताता है, ये फिजिकल फीचर बताता है. फिजिकल फीचर में क्या आता है, लैंड, क्लाइमेटिक कंडीशन, वेदर पैटर्न, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ. यानी कि जमीन कैसी है, प्लेन है, माउंटेन है, प्लेट्यू है. उसके बाद क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे ठंड है, गर्मी है, उसका भी रिप्रेजेंटेशन मैप में मिल जाता है. वेदर पैटर्न का रिप्रेजेंटेशन मिलता है कि मॉनसून कौन से महीने में आता है, फिर गर्मी कब आती है. वेजिटेशन यानी वहाँ पे किस तरीके का क्रॉप उगाया जाता है. मैप में हमें ये भी देखने को मिलता है, इस इलाके में कॉटन ज़्यादा उगाया जाता है, इस इलाके में गेहूँ ज़्यादा उगाया जाता है. देन देयर इज वाइल्ड लाइफ, यानी कौन सा जंगल कहाँ है और उस जंगल में किस तरीके के जानवर रहते हैं. इसके अलावा हमारे देश में जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं और कल्टिवेटेड क्रॉप्स हैं, इनके बारे में भी मैप जो है हमें बताता है. अगर हम गूगल मैप भी खोल के देख सकते हैं तो कहां पर कितना क्रॉप लगा है उसका पूरा डिटेल हमें मिलता है. और साथ ही साथ मैप से एक और जो इंपॉर्टेंट चीज मिलती है वो है टूरिस्ट अट्रैक्शन. यानी कि हमें कहीं घूमने जाना है तो हमें मैप की मदद लेनी पड़ती है. यानी कि मान लीजिए आप किसी अनजान शहर में जाते हैं तो आप एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, आप किसी एक टेम्पल में गए और अब आपको किसी म्यूजियम में जाना है. उस टेम्पल से उस म्यूजियम तक जाने के लिए हम मैप का इस्तेमाल करते हैं. अब वो मैप पेपर मैप हो सकता है, वो मैप गूगल मैप हो सकता है जो कि लाइव मैप होता है. मैप्स ऑल्सो शो डिफरेंट लैंड फॉर्म. अगेन लैंड एंड लैंड फॉर्म आर सेम. देन अनलाइक ग्लोब्स, मैप्स आर इजी टू कैरी. ओके, सो मैप्स आर इजी टू कैरी. Globe we can't carry with ourselves because that's a sphere. But maps are carried because they can be folded, they can be rolled, they can be punched, they can be bound as a book, and we can carry that in our bags. With the help of maps, we can make comparisons between places and their features. Using map, हम लोग comparison भी कर सकते हैं.
किस तरीके का कंपैरिजन कर सकते हैं? तो एग्जांपल ले लेते हैं फिर से। जैसे यहाँ पर ग्रीन है, ग्रीन का मतलब क्या है, यहाँ खेती होती है। ये येलो है, ये येलो इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ खेती नहीं होती है। तो इस तरीके से हम लोग ओके, यहाँ जो रेड चीजें हैं ये पहाड़ को दर्शा रहे हैं। अब यहाँ कम पहाड़ है इसलिए हल्का रेड है, यहाँ थोड़ा ज्यादा है इसलिए थोड़ा ज्यादा है, पर इस इलाके में आप देखिए पूरा ही रेड है, यानी कि पूरा बेल्ट जो है वो क्या है, हिली एरिया है या फिर यहाँ पर पहाड़ है, माउंटेन्स है। तो इस तरीके का कंपैरिजन भी हम लोग यूज करते हैं मैप को देख करके। Then our defense forces depends on map to get information required to make strategies and operate the movement of soldiers. तो जो हमारे डिफेंस फोर्सेस है जो कि बॉर्डर्स पे खड़े हैं, अब हमारा बॉर्डर लाइन यहाँ से लेकर के पूरा लैंड बॉर्डर है और इन सब में हमारे जो जवान है वो यहाँ काम करते हैं। तो आखिर में उनको हमारा एरिया कहाँ तक है, उनको कहाँ तक गश्त लगानी है, अगर युद्ध का स्थिति होता है या कोई अटैक होता है तो किस तरीके से डिफेंड करना है, इन सब के बारे में मैप से ही पता चलता है। वरना अगर मैप नहीं होगा तो यहाँ से लड़ते लड़ते पता चलेगा कि या तो दुश्मन हमारे यहाँ आ गए या फिर हम दूसरे के यहाँ चले गए। तो इस तरीके से मैप्स का होना बहुत आवश्यक है। Now we will talk about the elements of map. What are the part of maps, or what are those part of maps which we use to form a map? So the first one is the title. What is the title? जैसे चैप्टर का टाइटल होता है, हम लोग कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसका टाइटल है, इस चैप्टर का नाम है लुकिंग एट द अर्थ। तो चैप्टर से हमें क्या पता चला कि हम अर्थ के लैंडफॉर्म्स के बारे में जानेंगे। तो मैप का भी एक टाइटल होना चाहिए कि मैप आखिर में किस चीज को दर्शाना चाहता है। उस टाइटल से एक ओवरव्यू मिल जाता है कि हम लोग मैप में क्या चर्चा करेंगे। सेकेंड इज द डायरेक्शन और कंपास रोज। सो डायरेक्शन, मैप में डायरेक्शन जानने के लिए डायरेक्शन का इस्तेमाल करते हैं और कंपास रोज जो है वो हमें डायरेक्शन बताता है। सो पहले हम एलिमेंट्स के नाम जान लेते हैं। वी विल डिस्कस दिस इन फर्दर स्लाइड्स। सो वी हैव टाइटल, डायरेक्शन, लेबल्स, लेजेंड्स, lines of latitude, lines of longitude, scale, symbol and color. Now what are latitudes and longitudes? You can see the line here. There is a line which is going like this and it is crossing from here to here. There is another line which is crossing from here to here. Another line is this one and there is one more line here. What are these lines? There is no line on the earth. These are the imaginary lines which are drawn to locate the position of a space or position of a country. यानी कि हमारी कंट्री कहाँ पर है और जो दूसरी कंट्री है वो कहाँ पर है। अगर हमें बताना होगा तो हम किस तरीके से बताएंगे, तो हम इस इमेजिनरी लाइन के हिसाब से बताएंगे। जैसे इसके डिग्रीज यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं, यहाँ पर भी डिग्रीज है। तो ये जो डिग्रीज होते हैं मैप्स में, ये हमें किसी भी कंट्री का पोजीशन बताते हैं कि हमारा जो कंट्री है वो किस जगह पे है, दूसरी कंट्री से कितना दूर है। साथ ही साथ इनकी मदद से हम लोग क्लाइमेट चेंज भी बताते हैं। जैसे कि जो ईस्ट से वेस्ट होता है लाइन उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं और जो नॉर्थ से साउथ होता है उसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो लैटिट्यूड में जो होता है, जो सेंटर जो अर्थ के बिल्कुल बीच से गुजरता है, उसको हम लोग इक्वेटर के नाम से जानते हैं। इक्वेटर पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है। अब इक्वेटर से ऊपर जाते हुए और नीचे जाते हुए ठंड बढ़ती है। तो पहले इक्वेटर होता है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, देन पोल्स होते हैं। और जो लॉन्गिट्यूड होता है वो हमें टाइम ड्यूरेशन बताता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से कितना टाइम आगे या पीछे है। यानी कि टाइम पोजीशन से हमें क्या पता चलता है कि सूरज जो है उस कंट्री में कब उग रहा है और कब डूब रहा है, वहाँ रात है या दिन है। यानी कि जब हमारी कंट्री में दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है, तो वो हमसे थोड़ा पीछे हैं। तो इस तरीके के जो टाइम पोजीशंस है वो हमें लैटिट्यूड से लॉन्गिट्यूड से पता चलता है। स्केल जो है वो डिस्टेंस मापने के काम आता है। और सिंबल्स जो हैं, सिंबल्स हमें बताते हैं कि मैप में कौन सी चीज़ कहाँ पर है। जैसे कि अगर कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है या कैपिटल है, लाइक दिल्ली जो है वो कैपिटल है, तो दिल्ली कैपिटल को दर्शाने के लिए यहाँ पर एक स्टार बनाया गया है। ठीक है, तो स्टार वो स्टार क्यों बनाया गया है? क्योंकि वो एक कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी कंट्री का कैपिटल होगा तो वहां पर स्टार बनाया हुआ होगा मैप में। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्केल के बारे में जाते हैं। सो स्केल इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड द कोरस्पॉन्डिंग एक्चुअल डिस्टेंस। यानी कि मैप में
यहाँ पर एक डिस्टेंस लिखा हुआ है कि यहाँ से यहाँ पर तक का जो स्पेस है वो इतना 1000 किलोमीटर होगा, यानी कि 500 किलोमीटर। सो यहाँ से यहाँ तक ये 500 किलोमीटर है। स्केल करता क्या है कि जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसको छोटे डिस्टेंस में लेकर के आता है, यानी कि हम स्केल से इसको नापेंगे ये कितना है, ये कुछ सेंटीमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 500 किलोमीटर। सो अगर यहाँ से यहाँ अगर 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है मैप के ऊपर, एक्चुअल में क्या हो जाएगा, 500 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। हम कोई भी एरिया ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ एक शहर है और यहाँ एक शहर है, मैप पे इसका डिस्टेंस बता रहा है 2 सेंटीमीटर और यहाँ लिखा गया है 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 500 किलोमीटर। सो हमें क्या पता लगेगा कि यहाँ से यहाँ तक ये 500 किलोमीटर है। वहीं यहाँ से हम 3 सेंटीमीटर की दूरी पे एक और हमारा स्टेट या जगह है जहाँ हमें जाना है, तो अब ये कितना किलोमीटर हो गया, एक्चुअल डिस्टेंस जो हो जाएगा इसका 500 यानी कि 750 किलोमीटर का ये एक्चुअल डिस्टेंस हो जाएगा। स्केल क्या करता है, वो एक रिप्रेजेंटेशन है एक्चुअल डिस्टेंस का। इट इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ अ मैप एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग एक्चुअल डिस्टेंस, यानी कि मैप पे क्या डिस्टेंस है और एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, इसके बारे में कौन बताता है, हमें स्केल बताता है। अब स्केल के टाइप्स के बारे में जानते हैं कि कितने तरीके के स्केल्स हमारे बीच मौजूद हैं जिसे हम की यूज करते हैं मैप के ऊपर। तो पहला है हमारा स्टेटमेंट फॉर्म स्केल और वर्बल स्केल। स्टेटमेंट फॉर्म मतलब स्टेटमेंट दे रहा है। सो द टाइप ऑफ स्केल which is written like this, 2 centimeter is equals to 1000 kilometer. This is the verbal scale, जिसमें सीधे सीधे बता दिया गया कि हमारा मैप पे जो 2 सेंटीमीटर होगा वो एक्चुअल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। सेकेंड इज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में क्या होता है कि यूनिट्स नहीं लिखे होते हैं, वो केवल इस तरीके से लिखा होगा 1:50,000 बस। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिट जो है आप खुद से लगा लीजिए। 1:50,000 का मतलब कि अगर 1 सेंटीमीटर लेते हैं हम मैप पे डिस्टेंस, तो एक्चुअल डिस्टेंस हमारा कितना माना जाएगा, 50,000 सेंटीमीटर। अगर मैप पे डिस्टेंस 1 इंच है, एक्चुअल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 50,000 इंच। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या करता है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देता है, वो यूनिट नहीं देता है हमारे से। अब जो तीसरे तरह का हमारा स्केल है जिसे हम कहते हैं लीनियर स्केल या फिर ग्राफिकल स्केल या फिर पिक्टोरियल स्केल, ये स्केल क्या करता है, ये लाइन ड्रॉ कर देता है, यहां से यहां तक इस 500 किलोमीटर। अब आप खुद से डिसाइड करते रहें कि कितना डिस्टेंस है। इसने रिप्रेजेंटेशन दे दिया है और एक्चुअल डिस्टेंस भी बता दिया है, तो अब हम स्केल लेके नापना होगा कि 1 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। ओके, एग्जाम्पल के लिए जो हमारा पहला मैप था, इसमें एक ग्राफिकल स्केल दिया हुआ है, पिक्टोरियल स्केल दिया हुआ है, जिसमें कि केवल एक लाइन ड्रॉ करा है इसने, देन 500 किलोमीटर लिख दिया है, और बाकी हमें खुद से पता करना है कि इसका एक्चुअल डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड मैप्स, टाइप ऑफ मैप्स, एलिमेंट ऑफ मैप्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मैप्स एंड द स्केल। Based on scale, there are different type of maps. This type of maps are the general type of maps, but this is based on the scale. Like we have 3 types of scale. When we use different form of scale, we have 2 types of maps. One is large scale map and another is small scale map. जब हम स्केल के आधार पर 2 भाग में बांटते हैं, जब हम स्केल के आधार पर मैप को बांटते हैं कि किस तरीके का स्केल इस्तेमाल हुआ है, तो हमें 2 तरीके का मिलता है मैप। पहला है लार्ज स्केल मैप, दूसरा है स्मॉल स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिलता है, और स्मॉल स्केल मैप में हमें कम इंफॉर्मेशन दिया जाता है।
So large scale represents small area, and small scale maps represents large areas. So it seems a bit opposite, that large scale maps have small areas or represent small areas, and small scale maps represent large areas. So which type of maps are called the large scale maps? The survey map, the road maps, and the land use maps. And the atlas map or wall maps are known as a small scale map. So the example which we have been taking, this map is the small scale map, क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया को दिखा रहा है, ये पूरे इंडिया को दिखा रहा है, इंडिया इतना बड़ा है और इसको ये एक बार में दिखा रहा है. सो इट इज द स्मॉल स्केल मैप बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स लार्ज एरियाज, ये बहुत बड़े एरिया को दिखा रहा है. वही जो लार्ज स्केल मैप होगा वो बहुत छोटे एरियाज को दिखाएगा. जैसे कि आपकी गली में अगर कोई काम होना है और उसके लिए मैप ड्रॉ किया जाएगा तो वो लार्ज स्केल मैप होगा, या फिर एक छोटे शहर का अगर मैप बनाया जाए तो वो लार्ज स्केल मैप होगा और उसके अंदर सभी चीज़ें होंगी, यानी कि छोटे छोटे गलियों के बारे में भी जिक्र होगा आपके शहर के, आपके नगर के, और छोटे ग्राउंड्स जो हैं, पार्क्स जो हैं, वो सब कुछ उसमें दिखाए जाएंगे. छोटे मंदिर, छोटे स्कूल, तो हर छोटी डिटेल उसमें मौजूद रहेगी, इसलिए उसे हम लार्ज स्केल मैप कहते हैं, क्योंकि उसमें हर छोटी डिटेल दी जाती है. यूजुअली जो लार्ज स्केल मैप होता है उसमें 1 सेंटीमीटर का वैल्यू 500 मीटर होता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इज द 500 मीटर इन रियलिटी, वेयर एज in small scale maps which represent the large areas, 1 centimeter represents usually equals to 200 kilometer of the original area.